Okay, as we discussed about the partial differentiation in the last lecture, I given one problem to try to solve, and few students I think solved on that day, respective day. Someone asking about the doubts of that respective problems. The name of student is Pranita. Okay, fine. I will solve that question and then we'll move ahead. So the question was e raised to x. Yes, you have to write the lecture notes on in your notebook. Please remember these things. अभी लिख लो या बाद में recording देखते वक्त लिखो. It's up to you. So in a question it is mentioned we have to find the second order partial derivative, and the question was e raised to x log of y plus sine of y into log of x. This was a question. So suppose I'm solving this problem, so z equal to, now if I have to differentiate instead of z it was given as a u, so u is equal to dou u by dou x. What will be its derivative with respect to x? You will get e raised to x only, log y as it is, and derivative of this part with respect to x, so it will become sine y as it is into log x. Derivative will becomes 1 by x, 1 by x. Now further we have to differentiate this function, so dou square u by dou x square. So again they differentiating with respect to x, you will getting what, e raised to x into log of y as it is, and sine y kept as it is, so plus sine of y as it is, and derivative of 1 by x will becomes minus 1 by x square. You have to apply u by v rule, so v into derivative of u will become 0, minus 1 as it is into derivative of x will becomes 1 upon v square, so you will getting minus 1 by x square only. So this is our second order derivative. Similarly we have to proceed with dou u by dou y, so you will getting e raised to x as it is, and derivative of log y will becomes 1 by y plus derivative of this part, so cos of y into log of x as it is. Because while differentiating with respect to y variable we have to treat x as a constant part. Now further we have to solving dou u by dou y, sorry, dou square u by dou y square, which is equal to, this is second order partial derivative. So again you will getting e raised to x as it is, and derivative of 1 by y with respect to y it will becomes 1 minus 1 by y square, just like this part, minus derivative of cos will becomes minus, so minus sine of y and log of x as it is. So this is your final result. This too we have to calculate it. So hope Pranita this things clear from your side. If you are having any doubts, just let me know, or we'll moving ahead with the next part of our syllabus, that is the differentiation of a function of a function. So I'm considering that is now you don't have any doubts. So, again if you are facing any kind of a problem, just let me know. Okay, thank you. Now moving proceeding with the next part, that is a differentiation of a function, means function to function. So as a
already in a last lecture I just mentioned these things. So suppose or consider z is equal to f of u. Z is a function of f of u and u is equal to phi of x comma y. So you can see that z is a function of u and u itself is a function of two independent variables, x and y. So you can see that z is a function of u and u is a function of two independent variables x and y. The two relation define as, or the two relation define z as a function of x and y. देखो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, z is a function of u और u जो है दो इंडिपेंडेंट फंक्शन का, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है. Therefore, we can say that this relation implies that, or this relation defined as z is a function of, or z as a function of x and y. In such a case, z may be called, z may be called a function of a function. Z may be called a function of whose x and y. So such a kind of a functions are known as a function of a, this is basically we just define only a function. Here we did not define, or we are not define the differentiation. Now the differentiation is a little bit of different things. So moving ahead with the differentiation. Here only we define that is a function of a function. Now what is the differentiation? As already I mentioned here, that is z is a function of u. So z of f of u, and u is function of two independent variable phi of x comma y. So we have to perform the first order. Obviously we directly up second order nahi ja sakte ho. So if we have to perform the first order differentiation, so we can say that dou z by dou x, जैसे ही आप dou z by dou x आपको कैलकुलेट करना है, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है z as a function of x and y, and z may be called a function of a function x and y. So dou z by dou x, which is equal to dz by du into dou u by dou x. जब ये हम दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, अब यहाँ पे हमने dz by du क्यों लिखा और यहाँ पे dou u by dou x, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है u. तो z का सिर्फ u से ही डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन होगा, इसमें v w कुछ और वेरिएबल्स नहीं है. Therefore we return as dz by du. इसलिए इसको डायरेक्टली क्या लिखा है, dz by du, that is known as a complete derivative or a single derivative only. Single derivative means basically what? There is only one variable is present. Why is clear? Screen not visible? अभी भी visible नहीं है screen?
Anyone please comment? सर विजिबल है। Okay, fine. So z is equal to f of u is equal to phi of x comma y. Therefore, dou z by dou x is equal to dz by du. Please don't write in a chat. If you have any queries, please on your mic and you can just ask. Because while writing these things, I'm not able to see the chat box of Google Meet. तो मैं चैट बॉक्स देख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि चैट बॉक्स में आप क्या लिख रहे हो। तो आप प्लीज अगर आपको कुछ भी इश्यू है तो आप माइक ऑन करके बोलो यहाँ पे, otherwise I'm not able to see anything. So z is equal to f of u is equal to phi of x comma y. So this is partial derivative dou z by dou x. अभी इधर पार्शियल का रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन क्यों है? क्योंकि z फंक्शन है x और y वेरिएबल का, तो z x से भी विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट होने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट होने वाला है। लेकिन u जो है वो सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू u ही डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए हमने लिखा है dz बाय du। और यहाँ पे u जो है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y है उसके पास, इसलिए डो u बाय डो x। सिमिलरली वी हैव टू राइट डो z बाय डो y, डो z बाय डो y which is equal to dz by du into डो u by डो y। तो सिंबल को समझने की कोशिश करो, एग्जामिनेशन में भी आपको सिंबल इसी तरह लिखना है। यहाँ पे डो आप लिखोगे तो हम उसको रॉन्ग कंसीडर करते हैं, चाहे आप वो डेरिवेटिव ही यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन फंक्शन देखो अच्छी तरह से समझो फंक्शन क्या होता है। सो z एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, इसलिए डो z बाय डो x है, डो z बाय डो y है। these things are clear. But here in a starting point, consider z is a function of u only. z जो है वो सिर्फ u का फंक्शन है, z is a function of u only। तो z जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू u वेरिएबल, इसलिए dz बाय du। लेकिन u जो है वो फंक्शन है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का x एंड y, therefore we have to differentiate u partially, therefore dou u by dou x, dou u by dou y। So hope these things are clear to everyone in a class. If anyone having any doubt regarding this, you can just on your mic and you can just tell me so that I will सर सर explain। हेलो yes yes बोलो आप, मैं सुनता हूँ। सर, अगर z के पास u के अलावा और कोई वेरिएबल होता तो फिर क्या होता सर? यू के साथ वेरिएबल होता तो उसके साथ भी डिफरेंशिएट करते, लेकिन वो ऐसा होगा ही नहीं। अगर उधर भी दो वेरिएबल रहेंगे तो यहाँ दो कैसे पॉसिबिलिटी है? आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन सिंगल ही आएगा ना, डबल कैसे हो सकता है? तो फिर अगर वहां पे भी दो इंडिपेंडेंट हो गए तो यहाँ पे भी दो इंडिपेंडेंट, दोनों को आपको डिफाइन करना पड़ता, वो थैंक यू सर। एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो फंक्शन प्रॉपरली। क्योंकि कनेक्टिविटी, आप कोई भी चीज का कनेक्टिविटी करते हो तो किसी एक को तो आपको वो करना पड़ेगा ना, मतलब मेन ओरिजिन किसी एक से ही स्टार्ट होगा ना, ओरिजिन में दो पॉइंट नहीं हो सकते हैं ना कभी भी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट फ्रॉम दिस। तो ओरिजिन आपका एक ही होगा, ओरिजिन तो दो नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो डी जेड बाई डी यू हमने लिखा है, और यहाँ पे हम लोग आएंगे अगर तो ये आपका पॉइंट है, तो दिस इज x independent variable, this is y independent variable। so dou u by dou x, dou u by dou y। कैसा है? ओरिजिन तो आपका एक ही रहेगा कंप्लीटली, इस ओरिजिन में ही अगर दो इंडिपेंडेंट आ जाएंगे तो कैसे चलेगा वर्क? सो प्लीज मेक दिस थिंग्स क्लियर। अब ये थ्री वेरिएबल्स के साथ भी हो सकता है, ये आपका थ्री वेरिएबल्स के साथ भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं,
हो सकता है आपको 3 वेरिएबल्स के लिए भी पूछा जा सके। तो वी शुड रिमेंबर, क्योंकि हम लोग आगे 3 वेरिएबल्स का पढ़ेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 वेरिएबल्स हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अगर सिलेबस में है तो। बिकॉज आई थिंक सिलेबस में थर्ड वेरिएबल का कोई कोई चीज़ें ओमिट की गई हैं, तो वो हम डे बाय डे मतलब टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं या नहीं। सो मूविंग अहेड, ये जो नया सिलेबस आया है, आपसे पहले जो बैच पढ़ के अभी सेकेंड ईयर में गया है, वहां से जो वो बैच फर्स्ट ईयर में आया था, तब से थोड़ा सिलेबस चेंज है। चेंज मतलब सिलेबस से मैं सिलेबस के अंदर के कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, मतलब नेग्लेक्ट किया गया है, उसको सेल्फ लर्निंग टॉपिक के लिए रखा गया है, वो सेल्फ स्टडी के लिए किया जा सकता है। तो होप दिस थिंग्स आर क्लियर। आई एम मूविंग अहेड with the next part of about this chapter, or we have to solve few numericals or few problems on the basis of differentiation of a function। तो होप ये चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हैं। मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर आता हूं। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व, ये श्योर शॉट आपको यूनिवर्सिटी पेपर में इसका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने मिलेगा। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स के लिए मिल सकता है आपको, कोई भी चांसेस है। मतलब एक क्वेश्चन इस टॉपिक का डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन का गारंटेड आपको मिलता ही है सॉल्व करने के लिए। ऐसा होगा ही नहीं कि इस पार्ट का एग्जाम में नहीं आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ u is equal to log of tan of x plus tan of y, then prove that sin 2x dou u by dou x plus sin 2y dou u by dou y is equal to 2। ऑलमोस्ट 9 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, 9 टाइम 6 मार्क्स के लिए, 9 टाइम आ चुका है ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। तो वन बाय वन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन हियर। ये तो बहुत सिंपल पार्ट हमको दे दिया गया है, बेसिक पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। इसमें तो यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, एकदम इजीएस्ट वे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे वन बाय वन। सो डो यू बाय डो एक्स, फर्स्ट डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू, स्टार्ट कर देते हैं। तो लॉग का डिफरेंशिएशन सभी को अच्छी तरह से आना चाहिए, 1 अपॉन होता है, तो 1 अपॉन tan x प्लस tan y, tan x plus tan y into derivative of this part with respect to x। so tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square of x। I'm writing directly, अगर किसी को कुछ इशू है तो आप बोल सकते हो, but this is a basic differentiation derivative of u with respect to solution। I'm going to start it from here, just a minute, instead of this part I'm starting from again the basic one। solution u is equal to log of tan x plus tan of y। so differentiating, we have to differentiate this function। so dou u by dou x is equal to,
log means 1 upon tan x plus tan of y into derivative of this part, yeah, differentiation of this part with respect to x, so it will become sec square of x. So this part is hope clear to everyone. Now moving ahead with this part, given in a question is clearly given sine 2x into dou u by dou x. So sine 2x into dou u by dou x. So we have to write this part sine of 2x into dou u by dou x, which is equal to, क्या होगा, which is equal to, ये जो पूरा डो यू बाय डो एक्स का वैल्यू आपके सामने है, ये पार्ट को साइन 2x से मल्टीप्लाई करना है हमको और कुछ नहीं करना है. तो साइन ऑफ 2x into dou u by dou x we have, that is sec square of x upon tan x plus tan y, tan x plus tan y, tan x plus tan of y. So we have to simplify this part. So as all of you aware about these things, sine 2x is what? Sine 2x is basically, if you remember the formula, 2 sine x into cos x. If you remember the formula, 2 sine x into cos x, or I'm just writing here sine of 2 theta, which is equal to 2 sine of theta into cos of theta. So hope this formula you aware. So simple concept we have to apply here. Sine 2x is 2 sine x into cos x. So similarly, I'm just applying here yes. So moving ahead with this part, sine 2x into dou u by dou x, which is equal to sine 2x, I'm applying 2 sine x into cos x into sec square x. So this part I'm keeping as it is, sec square x upon tan x plus tan of y. अभी एक चीज आपको सभी को पता है, ये सेक स्क्वायर एक्स है, इसको, या ये cos x है. Cos x is what? If you aware about this thing, cos x means what? 1 by sec. Cos x means 1 by sec. So that this part we have to write kept as it is. अगर ये statement यहाँ पे लिखूं, so 2 sin x into 1 by cos, sorry, cos x will becomes 1 by sec x. This part I'm writing as it is, sec square of x upon tan x plus tan y. So tan x plus tan of y. अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे हमारे, तो sec x और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अभी जैसे, या फिर इसको कन्वर्ट कर देते, इसको हम ऐसा लिख सकते थे, sec square x will becomes 1 by cos square x, तो cos x कैंसिल हो जाता, वो भी कर सकते हो.
लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे रखा हूँ कि दोनों फॉर्मूलाइज आपके लिए हों, इसके लिए मैंने एक को कन्वर्जन नहीं किया, दोनों फॉर्मूला आप याद रखो। जैसे cos इक्वल टू 1/sec है, वैसे ही sec इज इक्वल टू 1/cos होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस पार्ट आउटसाइड, तो इट बिकम 2 sin x अपॉन cos x। होप ये स्टेप आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। sec x बचना है यहाँ पे, sec x को 1/cos x लिख सकते हो, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनटू 1 अपॉन tan x प्लस tan y, और फाइनली हमको मिलता है साइन ऑफ 2x इंटू डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू tan x अपॉन tan x प्लस tan y। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमको मिलता है। मैंने काफ़ी स्टेप वाइज गया हूँ, अदरवाइज आप साइन 2x यहाँ पे था, ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते थे, ये स्टेप के पास डायरेक्ट ये स्टेप आप करते, चलता, कोई भी मार्क्स आपका लॉस नहीं होता अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप जाओ और उसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। अभी इसी पार्ट को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो डो यू बाय डो वाई, अभी u हमारा क्या है वो देख लेते हैं ऊपर फिर से। u पावर लॉग ऑफ tan x प्लस tan y। सिमिलर वे से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, सो इट विल बिकम 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू बोल रहा हूँ, 1 अपॉन tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y इंटू सेक स्क्वायर ऑफ y। एकदम सेम आएगा, इसके लिए इसको सिमिलरली करके मैं लिख सकता हूँ आगे। हमको क्वेश्चन में दिया था गिवन, व्हाट वाज गिवन, sin 2y इंटू डो u बाय डो y विच इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो साइन ऑफ 2y इंटू सेक स्क्वायर ऑफ y अपॉन tan x प्लस tan y। तो यहाँ पे सेम वे से आपको जाना है, एग्जैक्ट सेम वे, ऐसा कोई अलग रास्ता नहीं है आपके लिए, सिमिलर वे से आपको करना है। जैसे वहाँ पे x वाला वेरिएबल था, यहाँ पे ये भी क्या होएगा 2 sin x, तो ये भी आपको मिलेगा साइन ऑफ 2y इंटू डो यू बाय डो एक्स। मैं इधर थोड़ा सा फास्ट करूँगा, तो 2 साइन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ y, इस पार्ट को मैं इधर लाके डिनोमिनेटर में कर दूंगा, सेक स्क्वायर y विल बिकम्स कॉस ऑफ स्क्वायर y इंटू 1 बाय tan x प्लस tan ऑफ y। नहीं तो एग्जाम में आप लोग सिमिलरली करके लिख दोगे तो मार्क्स कैंसिल हो जाएगा, आपको स्टेप सॉल्व करना है। cos y and this square get cancel, sin by cos will becomes tan, so finally we'll get that is sine of 2y which is into dou u by dou x which is equal to 2 into tan of y upon tan of x प्लस tan ऑफ y। अभी लास्ट में देखोगे तो दोनों को ऐड करने के लिए कहा गया था और प्रूफ करने के लिए कहा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2, तो अगर ऐड कर दूं तो बाय डिफॉल्ट वो 2 ही आने वाला है, आपका कैंसलेशन में चले जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन, और लेफ्ट हैंड साइड आई एम टेकिंग व्हाट इज साइन ऑफ 2x इंटू डो यू बाय डो x प्लस साइन ऑफ 2y इंटू डो यू बाय डो y विच इज इक्वल टू, तो दोनों टर्म हमारे पास है 2 इंटू टैन एक्स
upon tan x plus tan y plus 2 into tan y upon tan x plus tan y. एडिंग करोगे तो 2 कॉमन निकाल दोगे तो दोनों ऐड होके क्या होंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सो दैट यू कैन सी दैट 2 into tan x plus tan y upon tan x plus tan y, and finally we'll getting the right hand side. और ऐसे हमारा सम यहाँ पे वेरीफाई होता है. Just look one more time what we did here. For 6 marks the question asked for 9 times, so you can just see that actually क्या अप्लाई किया है, क्या किया है हमने यहाँ पे. So according to that we'll move ahead for the next problem. अगर किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो you can ask. You can just see that what we applied here. First, with the function kept as it is, we applied the differentiation with partial differentiation with respect to x, and we got this whole solution, that is sec square x upon tan x plus tan y. Then in a question it is clearly mentioned sin 2x into dou u by dx, so that is a given. सो वी टेकन एज इट इज, या फिर पूरा दोनों सॉल्व करने के बाद सीधा लेफ्ट हैंड साइड में रख के सॉर्ट आउट करो, या फिर ऐसा सेपरेटली करके सॉर्ट आउट करो, इट्स अप टू यू. सो साइन एक्स इंटू डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू साइन 2x डो यू बाई डो एक्स का वैल्यू वी गॉट दिस पार्ट, सो सब्स्टिट्यूटेड हियर, and be aware about that is sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. Similarly we are aware about that is a sec square x means 1 by cos square x. So according to that simplification we got 2 tan x upon tan x plus tan y. And similarly, because the variable is only changed here in sin 2y into dou u by dou y, so the variable difference is there and the function kept as it is, so that's why the term will be sin 2y into dou u by dou. Just a minute, यहाँ पर मिस्टेक किया है बट किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया. This term will becomes y. So your observation must be important in a lecture. क्योंकि with respect to y हम कर रहे हैं तो with variable y is important. अगर वहाँ पे भी x लिखूंगा तो 0 मार्क्स मिल जाएगा हमको. So dou u by y, dou u by dou y. And at the end we adding these two terms, so we got 2 only, because there are the same term which is cancelled or divided by very easily. So hope the things are clear. Now moving ahead with the next problem. अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं. हेलो सर, बोलो बोलो डायरेक्ट. आपने जो स्टेप वाइज किया है वैसे ही पूरा स्टेप टू स्टेप वाइज करना जरूरी है कि डायरेक्टली कुछ ऐसा सॉल्व किया तो चलेगा? As I explained during solution of the problem, see, अब यहाँ पे मैं आता हूँ. हाँ, ये स्टेप तो लिखना है आपको, जो गिवन है, गिवन लिखा, ये स्टेप इतना लिखा. तो जैसे यहाँ पे sin 2x इंटू डो यू बाई डो एक्स है, तो ये डायरेक्टली अगर ये स्टेप आप परफॉर्म कर दो तो भी चलेगा, द फर्स्ट थिंग. इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप अगर आप लिखते हो तो भी आपके मार्क्स लॉस नहीं होते हैं. इसके बाद अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है नहीं. उसके बाद इसके बाद अगर आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखते हो तो भी चलता है, एक और एक 2 स्टेप आपका बच जाता है. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो. जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको क्या हो रहा है हमारा,
पहला डेरिवेटिव किए, फिर गिवन दिखे, गिवन के बाद sin 2x को डायरेक्टली एक्सपांशन दिया है मैंने, ये स्टेप बोला हूँ। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप। तो एक को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 3 स्टेप ले लिया तो भी इनफ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जितना स्टेप यहाँ पे दिखाया वो, खाली एक चीज ध्यान में रखो कि प्रॉपर वे हो। अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया है, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो ये 3 स्टेप, सिमिलरली ये इसके लिए भी 3 स्टेप आ जाएगा आपके लिए। तो ऐसा टोटल 6-7 स्टेप मैक्सिमम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट है। और हेलो रिमेनिंग एडिशंस जो की हैं वो तो आपके कैपेसिटीज आएगा। यस बोलो। सर, अगर डायरेक्ट थर्ड स्टेप किए तो चलेगा? नहीं चलेगा, तो आपका सर थर्ड एक मार्क्स लॉस हो जाएगा। अच्छा सर, अगर थर्ड स्टेप के ऊपर जैसे बताए 2 साइन अपॉन कॉस है, उसको लिखने के बाद किए तो? उसको लिखने बोल ही नहीं रहा हूँ ना मैं, वो तो ओमिट अच्छा करने बोल रहा हूँ। आपको मैंने क्या बोला, sin 2x du by dx लिया है आपको, dou u by dou x इक्वल टू के बाद डायरेक्ट ये स्टेप करो, sin 2x को डायरेक्टली फॉर्मुलाइज करके 2 sin x cos x दिखाओ, और 2 sin x cos x के वाले के बाद डायरेक्ट आप स्टेप लिखोगे तो फाइन है। आप एटलीस्ट sin 2x को ये करके दिखाओ, या sec स्क्वायर x वाला ये करके दिखाओ, तो एक आपने दिखा दिया तो दैट इज फाइन है, ऐसा कोई इशू नहीं है आपके लिए। ओके सर। ये स्टेप मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। ये जो दोनों स्टेप हैं, ये एक स्टेप अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, ये एक स्टेप अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नहीं लिखते हो ये दोनों स्टेप, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे सीधा खत्म कर देते हो, दैट इज फाइन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिमिलर कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा ही प्रॉब्लम लूंगा, बिकॉज वी हैव ओनली 20 मिनट्स। तो आई थिंक एक बड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन वो 20 मिनट्स में शायद सॉल्व ना हो पाए, तो इट माइट बी अ डिफिकल्ट। टोटल आज इसके बाद भी कोई लेक्चर है आपका? नहीं सर। नो सर। ओके, तो फिर वही न्यूमेरिकल लेता हूँ फिर। So moving ahead with the next numerical, that is a second one for today's. If theta is equal to t raised to n e raised to minus r square by 4t, find n which will make dou theta by dou t is equal to 1 by r square into dou by dou r। अब देखो, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, तो कभी भी एग्जाम में सॉल्व करते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहे, अगर आर ऐसा एक जगह आपने लिखा है और एक जगह ऐसा आर बना रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए वो सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, अगर 1 बाय आर स्क्वायर ऐसा लिखे हो तो हर जगह आर इसी तरह मेंशन करो। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, हम इधर 1 बाय आर स्क्वायर लिख देते हैं ऐसा, फिर इधर आर, फिर आगे बहुत मिक्स होता है। तो इतना कोई एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है वो इतना वक्त नहीं देगा कि ये भी आर है ये भी आर है, ऐसा कंसिडरेशन में नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंग्लिश, सो दिस इज अ सिंबल। इफ यू अप्लाई दैट इज अ सिंबल फॉर आर दिस, या आर को इससे रिप्रेजेंट कर दिया तो आगे फिर वही आर एक्सपेक्ट होता है। तो जस्ट मैंने जानबूझ के लिए गलत लिखा था, बट ध्यान में रखना, आर स्क्वायर इंटू dou theta by dou r। So this is our problem। इसमें करना क्या है देखोगे अच्छी तरह से, तो थीटा इज इक्वल टू टी रेस टू एन ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, ये अपने को फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड एन। एन ये इक्वेशन को प्रॉपरली मतलब
स्टेबलाइज करे, या जो इक्वेशन हम किया गया है उसकी इक्वेशन में प्रॉपरली फिट हो। मतलब बेसिकली वी हैव टू फाइंड एन, एन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, अच्छी तरह से ध्यान देना। सो द सॉल्यूशन is equal to t raised to n into e raised to minus r square by 4 into t. So this is our problem. Now I'm differentiating with respect to t. So dou theta by dou t with respect to t differentiate कर रहे हैं इसको। So n into, या देखो u by v आएगा यहाँ पे, ये चीज ध्यान में रखना। के लिए ये पार्ट हम लोग u ले लेते हैं या फिर आगे पीछे करते हैं तो भी चलेगा। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वैसा भी करो। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप समझना अच्छी तरह से। तो सेकेंड को एज इट इज मैं रख रहा हूँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो n इंटू टी रेस टू n माइनस वन, ये हो गया मेरा सेकेंड वाला पार्ट एज इट इज, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t प्लस, अब फर्स्ट वाला एज इट इज रख रहा हूँ, टी रेस टू n, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लूंगा तो ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है। अब इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना है हमको, विथ रिस्पेक्ट टू t लेना है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा डेरिवेटिव, अगर अच्छी तरह से आप देखोगे तो द होल पार्ट विल बी केप्ट एज इट इज into, I'm just writing directly, if there will be a no doubt, then minus r square by 4 into minus 1 by t square। ये स्टेप समझ में आया सभी को या किसी को डाउट है? सी एकदम सिंपल है, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t एज इट इज। फिर ये पूरे पार्ट का डेरिवेटिव जब आप लोगे, पूरे पार्ट का आपको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो माइनस आर स्क्वायर बाय, तो आपका कांस्टेंट ही ट्रीट होने वाला है, तो वो एज इट इज रख दिया है। सिर्फ 1 बाय टी का डेरिवेटिव, जैसे 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आपने लिखा, वैसे ही 1 बाय टी का माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डेरिवेटिव आपको मिल जाता है। सो होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सो डो थीटा बाय डो टी इज इक्वल टू n बाय टी। देखो अच्छी तरह से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यह एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इसको ऐसा लिखा t रेस टू n इंटू टी रेस टू माइनस 1, चलेगा? किसी को अगर नहीं डाउट है तो t रेस टू माइनस 1 समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये हमारा पूरा, अगर अच्छी तरह से देखोगे तो क्वेश्चन क्या था, ये अभी आगे मैं लिखूंगा, e रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, पूरा एक स्टेप बढ़ाता हूँ, प्लस t रेस टू n इंटू ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका पार्ट, तो आर स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दें, ये रेस टू माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डो थीटा बाय डो टी इज इक्वल टू n बाय टी हो जाएगा ये पार्ट, t रेस टू n इंटू ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t हमारा क्या है, थीटा। तो आई एम जस्ट राइटिंग
this part here theta plus ये भी अगर अच्छी तरह से आप देखोगे तो ये क्या है आपका थीटा है इनटू आर स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर। तो ये चीज़ हमको मिल रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, अभी एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा वो करता हूँ। जैसे हमको थीटा जो था, थीटा इज इक्वल टू, थीटा वॉज गिवन दैट इज टी रेस टू एन इंटू ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, ये था। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर, ये लिख देता हूँ, समझिए 4t इज इक्वल टू, ये पार्ट इधर चले जाएगा तो क्या होएगा थीटा बाय टी रेस टू एन, थीटा बाय टी रेस टू एन। ठीक है, तो होप थिंग्स आर क्लियर। मैंने जस्ट एक्सप्लेन वो किया है आपके लिए। अब जो हमारा डी थीटा है उसको अच्छी तरह से ध्यान देना। ये थीटा आपके सामने है, ये सिर्फ याद रखना अच्छी तरह से कि इसका वैल्यू ये हो सकता है। एडजस्टमेंट अगर करूँगा तो ये हो सकता है। इस थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि हमको एक इक्वेशन दिया है, उसमें देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू आर भी है, विथ रिस्पेक्ट टू टी भी था, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी तो कर दिया हमने, अब विथ रिस्पेक्ट टू आर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू टी रेस टू एन e रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t differentiating with respect to r. So dou theta by dou r। अब dou r आएगा तो t रेस टू एन सीधा सीधा साइड में होने वाला है, आपके लिए कॉमन फैक्टर के जैसा ट्रीट होने वाला है यहाँ पे। t रेस टू एन इंटू ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, r का डेरिवेटिव निकालना है, my into derivative of this part with respect to r, so minus 2r upon 4t, ये हमको मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते थे, या इक्वेशन नंबर 1 दे के रखते हैं। डो थीटा बाय डो आर कुछ कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करते हैं इस टर्म्स को। सो डो थीटा बाय डो आर विच इज इक्वल टू, देखो अच्छी तरह से ई रेस टू माइनस है, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t। हो क्या कंफ्यूजन हो सकता था आपको, इसलिए मैंने वो इस तरह से लिखा है इसको। जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम पहले मैंने मतलब एक्सप्लेन किया आपको, टी रेस टू एन इंटू ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t इज इक्वल टू हमारा थीटा था। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आप लिख सकते हो। तो डो थीटा बाय डो आर इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखा अगर इस पार्ट को, माइनस आर इंटू थीटा अपॉन 2t। तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को कि ये स्टेप कैसे आ गया है, क्योंकि टी रेस टू एन इंटू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t केप्ट एज इट इज। थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं, अदरवाइज इसको थोड़ा
ठीक है, ये लास्ट में देखते हैं। सो माइनस आर थीटा बाई 2t एज इट इज। क्वेश्चन थोड़ा आ जाते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया है। दो थीटा बाई दो आर जो था उसको किससे मल्टीप्लाई है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई है। सो आई एम अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट हियर, आर स्क्वायर इंटू दो थीटा बाय दो आर is equal to, so r square into minus r into theta upon 2t. So you can just see that this part you will getting something r square into dou theta by dou r, which is equal to minus r cube into theta upon 2t minus 2t। फिर नेक्स्ट अगर ऊपर आप जाके इक्वेशन देखोगे प्रॉपरली तो फिर से एक डिफरेंशिएशन है, दो थीटा बाय दो आर को आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई दो बाय दो आर है, मतलब उस पूरे टर्म को फिर से विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है आर से। सो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस पार्ट, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर दो बाय दो आर इंटू आर स्क्वायर इंटू दो थीटा बाय दो आर विच इज इक्वल टू, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो एक स्टेप में लिखता हूँ, और दो बाय दो आर इंटू माइनस आर क्यूब इंटू थीटा अपॉन 2t, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर। सो यू कैन जस्ट सी दैट दो बाय दो आर विच इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग, तो माइनस वन बाय टू टी एज इट इज, माइनस वन बाय टी एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होगा u इंटू वी। अब क्वेश्चन आएगा कि थीटा है, तो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू, थीटा तो मेन फंक्शन है, तो मेन थीटा इक्वल टू अगर देखोगे तो उसमें r वेरिएबल भी प्रेजेंट है, तो इसके लिए इसको कांस्टेंट आप ट्रीट नहीं कर सकते। इसको फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो u इंटू वी रूल जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज r क्यूब इंटू दो थीटा बाय दो आर प्लस थीटा एज इज, और आर क्यूब का डेरिवेटिव लोगे तो 3r स्क्वायर, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। सो दिस वन बाय वन वी मूविंग अहेड, नेक्स्ट पार्ट। सो दो बाय दो आर माइनस वन बाय टू टी माइनस वन बाय टू टी, ये हमने कैलकुलेट किया है, दो थीटा बाय दो आर है हमारे पास। दो थीटा बाय दो आर अगर देखोगे तो क्या है, माइनस आर थीटा बाय टू टी, माइनस आर थीटा बाय टू टी। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ माइनस आर थीटा बाय टू टी, तो ये पूरा पार्ट क्या होएगा, माइनस आर रेज टू पावर 4 माइनस आर रेज टू पावर 4 थीटा अपॉन टू टी, और प्लस 3r स्क्वायर इंटू थीटा। अब यहाँ से अगर देखोगे आप अच्छी तरह से, तो वी कैन टेक थीटा एज अ कॉमन फैक्टर, और r स्क्वायर भी आप आउटसाइड कर सकते हो। देयरफॉर दो बाय दो आर, जस्ट अ मिनट, दो बाय दो आर इंटू आर स्क्वायर इंटू दो थीटा बाय दो आर विच इज इक्वल टू, वी कैन टेक एज इट इज, या फिर इसको ऐसे रखना है तो ऐसे रखो, या कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस वन बाय टू टी से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर स्क्वायर और थीटा कॉमन निकाल देता हूँ। तो आई एम जस्ट टेकिंग आर स्क्वायर
थीटा एज अ कॉमन फैक्टर और बाहर हमने इसको अगर निकाला और -1/2t से अंदर अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बचेगा r² अपॉन 4t² -3/2t -3/2t ये पार्ट। अब फिर से अगर आप ऊपर जाके देखेंगे हम लोग इस पार्ट को, सम 8 मार्क्स का सम है, 1/r² से मल्टीप्लाई है किसको, डो बाय डो आर को इंटू r² इंटू डो थीटा बाय डो आर को किससे मल्टीप्लाई है, 1/r²। तो 1/r² से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/r² इंटू r² इंटू डो थीटा बाय डो आर 1/r² इंटू डो बाय डो आर इंटू r² इंटू डो थीटा बाय डो आर which is equal to 1/r² into r² into theta r² upon 4t minus 3/2t। बस 2-3 मिनट और जाएगा तो r² get cancel and at the end you will getting 1/r² into dou by dou r सर 40 स्क्वायर what 4t², yes, r² into dou theta by dou r which is equal to, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखेंगे तो थीटा इंटू r² बाय 4t² -3/2t, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। इक्वेशन 1 जो था, इक्वेशन 1 को थोड़ा सा हमने कम सॉल्व किया है, कम मतलब खाली एक स्टेप में से थीटा हमने कॉमन नहीं लिया था, बस बाकी तो रेस्ट वर्क हमने किया ही है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या है, दैट इज इक्वेशन 1 वाज डो थीटा बाय डो टी इज इक्वल टू n/t प्लस n/t इंटू थीटा प्लस r² बाय 4t इंटू थीटा, ऐसा ही था क्या, n/t इंटू थीटा थीटा इंटू r² बाय 4t², r² बाय 4t², 4t² theta. Now see, if I'm taking a theta as a common factor here, तो d theta by dt is equal to मेरा ये पार्ट हो जाएगा n/t प्लस r² बाय 4t², और ये थीटा एज इट इज। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। अभी अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पे दोनों को इक्वल दिया है हमको, क्वेश्चन में हमको दोनों पार्ट को बोला गया है कि इक्वल है, इसको इक्वेट करो और इसका रिजल्ट लाओ विच विल मेक दिस इक्वेशन। तो हम दोनों को इक्वल करके लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3, so one by one I'm writing n/t plus r² by 4t² theta is equal to theta into r² by 4t²
-3/2t. तो थीटा थीटा तो गेट कैंसल। ये इक्वेशन देखोगे तो इसके साथ प्रॉपरली इक्वेट हो जाएगा। रही बात इसकी, तो n इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो आई एम जस्ट इक्वेटिंग दिस पार्ट, सो n/t which is equal to -3/2t, so that you can see that this tt get cancel, उधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एट द एंड n इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -3/2, और यही आपका रिजल्ट है, n इक्वल टू -3/2। सो just a minute, I'm just first of all I will give the attendance link, उसके बाद फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा सबको। So just one more time I'm going to explain this problem. So the question was clearly given, theta is equal to t raised to n, t raised to minus r square by 4t, find n which will make this equation which is given. So first हमने क्या किया है, डेरिवेटिव किया with respect to t, dou theta by dou t. So applying the same rule, that is x raised to n वाला rule apply करके similarly product rule apply किया है, जिससे हमको ये इक्वेशन मिलता है। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन ले लिया, जबकि इक्वेशन 3 डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते थे। And then again we taken that is a theta is equal to t raised to n into e raised to minus r square by 4t. Differentiating with respect to r here, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। Dou theta by dou r, so we just apply the rule of derivative t raised to n as it is constant, because we have to differentiate this function with respect to r. So exponential का derivative kept as it is exponential, and exponential के साथ जो function है, we have to differentiate that function with respect to r. So we got this result, minus r theta by 2t. फिर हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि जो dou theta by dou r है उसको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। सो वी डिड द सेम वर्क, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे हमको ये पार्ट मिला। देन अगेन इट इज इन अ क्वेश्चन क्लियरली मेंशन, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो जो मल्टीप्लाई करके हो गया r स्क्वायर से, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू r। सो हियर t ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। अब क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है कि थीटा भी कांस्टेंट, अगर थीटा को कांस्टेंट कंसीडर कर लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। एंड व्हाई थीटा विल बी कांस्टेंट? नो, बिकॉज इफ यू सी दैट इज थीटा इज इक्वल टू टी रेज, थीटा तो ही मेन फंक्शन है, एंड थीटा इज इक्वल टू टी रेज टू एन इंटू ई रेज टू माइनस आर स्क्वायर बाय 4t। तो थीटा टू ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो we have to apply again a product rule. So first into derivative of second, like minus r cube as it is, तो minus हमने पहली बार निकाला था, तो r cube as it is, and derivative of theta with respect to r plus theta into derivative of r cube will becomes 3r square, and dou theta by dou r which is what, dou theta by dou r अगर देखोगे तो हमने अभी कैलकुलेट किया था minus r theta by 2t, वो चीज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, and we got the derivative of that respective result. ये हमको result मिला। Further it is in a question, it is clearly mentioned that is we have to multiply by 1 by r square, या r square से divide कर दो पूरे को जो आपने अब तक वर्क किया है। तो हम लोग यहाँ पे r square से उस पार्ट को डिवाइड करते हैं, या 1 by r square से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 by r square से मल्टीप्लाई करने पर r square गेट कैंसल, रिमेनिंग इज ओनली इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिया, इक्वेशन नंबर 1 को लेके सिर्फ थीटा को कॉमन लिखा है। यहाँ पे थीटा को कॉमन नहीं लिखोगे तो बाद में वैसे भी रखते हैं, यहाँ पे भी थीटा को मल्टीप्लाई करके रखते, कोई दिक्कत नहीं आता। इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करते, थीटा उधर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता, वो बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। एट द एंड यू कैन सी दैट इज बाय इक्वेटिंग दिस पार्ट, थीटा थीटा गेट कैंसल, r स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर गेट कैंसल, कैंसलेशन हो जाएगा ये दोनों पार्ट, और एट द एंड यू विल गेटिंग n by t इक्वल टू -3/2t, एंड
टी गेट कैंसिल एंड n इज इक्वल टू -3/2। तो ये प्रॉब्लम है, 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है बहुत बार, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 5 to 6 टाइम ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए। इसके अलावा अभी कोई किसी को डाउट है प्रॉब्लम में तो यू कैन आस्क, आई विल रिस्पॉन्ड। If no doubts, we should take the final attendance and then you people can leave. Just waiting for the attendance responses, how much of them are converted. Till now 69 students are responded. Please don't left. Once I will say now left, then you can left, else you have to wait. I'm just going to take the one more attendance for my point of view. Today in the morning I shared the reference books PDF. So if you want, you can just refer that. Yes. सर वो ओपन नहीं हो रहा है सर पीडीएफ। ऐसे कैसे नहीं ओपन होएगा? ओपन होएगा। आपको एक पीडीएफ तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो डाउनलोड करोगे तो ओपन होगा। सेकेंड वाला आपको डायरेक्ट ओपन हो जाना चाहिए। Even if I will get the Kumbhojkar, I will upload the Kumbhojkar also in a classroom. तो एक बार चेक करो, नहीं हो रहा है तो क्या है, व्हाट्सएप पे उतना बड़ा 300 MB एंड ऑल समथिंग शेयर करना, एंड व्हाट्सएप पे कोई चीजें शेयर करना नॉट लॉजिकल है। यू हैव टू use a Google Classroom only. Okay, so if there, I think I'm considering there will be a no doubt, so I'm just going to stop this lecture. हेलो Yes, Lakshit. सर, मेरा नेटवर्क इशू की वजह से मैं late हो गया था। हाँ बोलिए। मेरा अटेंडेंस का हाँ, नेटवर्क इशू not की getting वजह your से voice properly. नेटवर्क इशू की वजह से मैं एग्जिट हो गया था, तो वापस से मुझे लिंक अच्छा, मिल सकता है? हाँ, yes, I will share, no worries. थैंक यू सर। So considering Monday and Saturday will be mind lecture, and rest 2 days the lecture will be conducted by Tina ma'am. So Monday and Saturday I will conduct. Okay, so thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.